welcomes you all on this second day of the workshop on Tally, basically Tally Prime and Tally ERP 9, wherein the eminent faculty, the experts here, Pankaj Deshpande sir, had been guiding us all through with various tips and trips regarding Tally. And I think you all might have enjoyed yesterday. The session was really very nice and the feedback was also amazing. Friends, today, unfortunately, there was other speaker along with Pankaj sir, Dhiraj Talmale, but due to some exigencies, he is not able to join us. So Pankaj sir will be guiding us through. But Pankaj sir, as yesterday we already conveyed you all that he had been facing a tough time with his hand and he had a major accident. But despite say having a tough time with the hand, still he is there. So today he'll be taking us through say most of the part, but all alone. And Pankaj sir, I think you'll try to wrap up a little early because I know the pain is say very much. And friends, you can understand that despite being say on such a say actually accidented, he's still there. So kindly bear with us in case he tries to wrap up a little early. But I think Pankaj sir, full credits to you and hats off to you that you had been here on the forum of Nagpur branch for this session. So Pankaj sir, over to you, and I think all are waiting to start. So please take the charge, sir. Yes, thank you very much, Jiten sir, and welcome all the participants. I think yesterday you must have learned something new. आपने बहुत सारी चीजें कल सीखी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और उसी सीरीज में, उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं. We are going to learn few more things today which will be really helpful for you in either this particular season, this particular audit season, or you may use it on a regular basis also, because I am using these things in my office on a regular basis. So you also can use these things on a regular basis. Absolutely no issues. So friends, let us go to Tally screen. Yes, so this is my Tally screen and we will be starting. Yesterday we discussed certain points, certain things, certain features which can be helpful in auditing. Now today we are going to discuss about the core audit feature of Tally. Tally का जो core audit feature है वो हम आज सीखने वाले हैं. अब ये Tally Prime और Tally ERP 9 दोनों में थोड़ा सा इसका मेनू अलग अलग है. तो ये थोड़ा सा मेनू अलग कैसे है मैं आपको दोनों बताऊंगा. We will be discussing Tally ERP 9 as well as Tally Prime both. तो ये Tally ERP 9 और Tally Prime both हम डिस्कस करेंगे और हम बढ़ते आगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever you want to use audit feature in Tally, the basic thing is that you must on security control. Security control जब तक आपका on नहीं है तब तक आप audit feature use नहीं कर सकते. The first step to start using audit feature is to on the security control feature. अब ये security control कहाँ से on होगा ये मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे देखिए कंपनीज में एक security नाम का बटन दिया है. Tally ERP 9 में अल्टर F3 बटन दिया था, अल्टर F3. अब यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल, द बेसिक सिक्योरिटी कंट्रोल हमने यहाँ पे ऑन करके रखा है ऑलरेडी. अगर ऑन नहीं है तो यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं. लेट मी शो इट टू यू वंस अगेन. आई एम क्लिकिंग ऑन दिस कंपनी फीचर एंड आई एम गोइंग टू दिस सिक्योरिटी. ये सिक्योरिटी यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे एंटर करने के बाद ये मुझे पूछ रहा है कि कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा. आई हैव सेट इट टू यस. यूजर नेम ए, पासवर्ड ए, कंफर्म पासवर्ड. अब यहाँ पे बाकी जो चीजें है वो रिमोट एक्सेस के लिए दी है. रिमोट एक्सेस का फिलहाल हमारा कोई काम नहीं है. दिस इज पॉइंट नंबर 1. Point number 2, now let us go to this alter option. If I go to alter option, यहां से भी आप सिक्योरिटी कंट्रोल को ऑन कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कंपनी अल्टरेशन का स्क्रीन है ये. दिस इज कंपनी अल्टरेशन स्क्रीन और यहाँ पे हम सिक्योरिटी कंट्रोल को ऑन कर सकते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी ऑन है. So this is step number 1, how to set security control on. Unless and until security control is on, you cannot start audit feature. Now after making this, yes, you will get one additional option. The additional option is enable Tally audit features. This is the option that will be displayed only after you set security control to on. Unless and until this security control is on, you will not get this option enable Tally audit features. तो यहाँ पे Tally audit feature का option यहाँ पे आपको मिल रहा है
और ये हमने ऑन करके रखा है। अब एक छोटा सा पॉइंट है, वो भी मैं आपको बता दूं एज अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी, डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, यू कैन सेट इट टू यस। What are the advantages of setting it to yes? The biggest advantage is that many a times it may happen that some of your staff members, some of the external person may take the data out and he may try to extract the data, leak the information from your tally company. So unless and until he is having tally license, the tally data will not get opened if you are setting it to yes. तो as a matter of security ये आपने yes करके रखना चाहिए। ये अगर yes किया है तो एजुकेशनल मोड पे आपका डेटा खुलेगा नहीं, सिर्फ लाइसेंस मोड पे ही खुलेगा, एक्टिवेटेड मोड पे ही खुलेगा। लेकिन एक बात याद रखिए आप कि अगर आपको खुद को अपने घर पे डेटा ओपन करना है और आपका एजुकेशनल मोड टैली है घर पे, आपको अपने लैपटॉप पे डेटा देखना है तो वहां पे भी ये खुलेगा नहीं। तो इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, दोनों चीजें यहाँ पे। सो यू कैन सेट इट टू ऑन इफ रिक्वायर्ड। हाँ, सो फर्स्ट स्टेप इज ओवर। हमने सिक्योरिटी कंट्रोल ऑन कर लिया है यहाँ पे, और ऑन करने के बाद में हम अभी एस्केप करते हैं और इसके बाद का दूसरा स्टेप हम देखते हैं। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप, टू सम एक्सटेंट यू नीड टू एक्टिवेट सिक्योरिटी कंट्रोल। अब सिक्योरिटी कंट्रोल या फिर टैली ऑडिट फीचर ये मोस्टली वहां पे काम में आएगा जहां पे मल्टी यूजर टैली है और बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, 2 3 4 5 लोग हो सकते हैं या 10-20 लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यूजर्स एंड पासवर्ड में जाके यूजर्स और पासवर्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे यूजर्स हमने यहाँ पे इस कंपनी में क्रिएट किए हैं। तो ये कंपनी में जितने भी आपके यूजर्स है, ये सारे के सारे यूजर्स आप चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको एक नई कंपनी क्रिएट करके ही दिखा देता हूँ। ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी है इसको हम बाद में देखेंगे। एक काम करते हैं, हम नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी। क्रिएट Tally audit feature is the name of company. State, let us say Maharashtra. हाँ, अब यहाँ पे इसने हमें सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है, हम एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। Now we will press escape and let us go to company. Let us go to security here and inside security let us say yes. Username for the sake of simplicity A, password A and confirm password once again A. फिलहाल हम कोई यूजर नहीं बनाएंगे, एंटर। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, एनेबल ऑडिट फीचर्स, टैली ऑडिट फीचर्स, वी आर सेटिंग इट टू यस, एंटर एंड एक्सेप्ट। So we have created the company and we have set the tally audit features on, set to it to on. तो यहाँ पे हमने इसको ऑन कर दिया है। So this is a completely new company and we are starting with brand new company. ये brand new company के साथ में हम काम अभी शुरू कर रहे हैं। तो अब सबसे पहला काम है मेरा यूजर क्रिएट करना। We will create certain users. Let us go to this users and password. I am creating certain user। यहाँ पे user role for the sake of simplicity let it be owner only। हम अभी आज सिक्योरिटी कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कोई सिक्योरिटी लेवल्स क्रिएट नहीं करेंगे। We are talking about tally audit feature. For this purpose we need different types of users, that's why we will be creating users one by one. So चलो हम users अभी create करते हैं। Let us say users, सचिन नाम का एक यूजर है, पासवर्ड empty, no password at all, password is optional। उसके बाद जीतेन नाम का एक यूजर है,
हाँ, उसके बाद अभय नाम का एक यूजर है। चलो 3 यूजर्स हमने बना लिए। वी हैव क्रिएटेड 3 डिफरेंट यूजर्स। And after creating 3 different users, we will be recording certain amount of transactions. Certain transactions we will record. Before that, let us create certain ledgers. कुछ ledgers हम create कर लेते हैं यहाँ पे. Let us say capital is a ledger and opening balance of capital, let us say 10 lakh rupees is the opening balance of capital. SBI term loan under secured loans, let us say 25 lakhs. Then creditor 1, sundry creditors, let us say 2 lakhs. Then let us say cash. Cash is already there. We did not create it. Let us say SBI current account under bank accounts. $5 lakhs. कुछ ओपनिंग बैलेंसेस हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं. एक मशीनरी के नाम से बना देते हैं हम. मशीनरी $23 lakhs. अब एक बार डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस देख लेते हैं कितना है. तो बचा हुआ अमाउंट जो भी होगा 9 लाख रुपीज यहाँ पे दिख रहा है, हम कैश में डाल देते हैं 9 लाख रुपीज, सो दैट आवर ओपनिंग बैलेंसेस गेट्स टैलीड. अल्टर लेजर कैश $9 lakhs. चलिए लेट अस गो टू बैलेंस शीट. द ओपनिंग बैलेंसेस आर टैलीड. हमारा काम हो चुका है और इसके बाद हम अभी एंट्रीज रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं. वी विल बी स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज. लेट अस रिकॉर्ड एंट्रीज एंड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज आई एम चेंजिंग द यूजर नाउ. ये जो यूजर है इसको मैं चेंज करता हूं. यहाँ पे यूजर चेंज करने के लिए एक नया सिस्टम टैली ने दिया है जो कि टैली प्राइम में ही है, टैली ERP 9 में नहीं था. ये दोनों तरीके मैं आपको दिखा देता हूं. अगर आप टैली ERP 9 यूज कर रहे हैं तो इन केस ऑफ टैली ERP 9 you have to close the company and then you have to start it again. You have to close the company and then you have to start it again. So I have closed the company first and I am then starting the company. अब ये जो कंपनी है मैं यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए वापस मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी में. सिलेक्ट में हमारी जो कंपनी थी, हाँ, अब ये कंपनी का पाथ, एक मिनट, आई हैव टू चेंज द पाथ. आई हैव टू रीस्टार्ट. एक बार टैली में रीस्टार्ट कर लेता हूं यहाँ पे टैली प्राइम. For the purpose of audit, we need to create certain amount of data. I am deliberately creating the data. That's why ये आपको समझने में आसानी हो. अगर एग्जिस्टिंग कंपनी में हम काम करते हैं तो वहां पे डेटा ऑलरेडी होता है. यहाँ पे हम जानबूझ के डेटा क्रिएट कर रहे हैं और डेटा क्रिएट करने की वजह से आपको समझने में आसानी होगी बहुत सारी चीजें. क्यों? क्योंकि डेटा कुछ है नहीं कंपनी में. जो डेटा वो है वो हमने ही क्रिएटेड किया हुआ डेटा. ये
Now I am sharing my tally screen again with you. यहाँ पे मैंने फिर से एक कंपनी वही ओपन कर लिया है जो मेरी कंपनी थी. अब मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे एक ऑप्शन टैली ने दिया है कि अगर आपको यूजर चेंज करना है तो यूजर चेंज करने के लिए यहाँ पे कंपनी में एक ऑप्शन दिया है टैली ने, चेंज यूजर. दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन टैली ERP9. दिस इज अवेलेबल इन टैली प्राइम ओनली. आई हैव सिलेक्टेड दिस ऑप्शन, चेंज यूजर नेम. I am selecting change username. My username was Sachin. Let us say Sachin. Password was empty. I know it. So now the user selected is Sachin. Sachin नाम का यूजर मैंने ओपन कर लिया है. अब यहाँ पे मैं कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता हूँ. Vouchers. Let us say payment. I am making a payment, cash payment. I am creating a new ledger. Let us say I am making a payment for rent. Indirect expenses. I am making a payment of rent, indirect expenses. ये एक रेंट का मैं यहाँ पे let us say 25,000. Cost center is not needed. कुछ ही लिया तो एक लेते कॉस्ट सेंटर, चलो डजंट मैटर. सो रेंट, दिस इज द वाउचर फॉर रेंट. एक रेंट का वाउचर हमने बना दिया. उसके बाद एक और हम क्रिएट करते हैं वाउचर. लेट अस से अल्टर सी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस. लेट अस से 11,000. एक और हम वाउचर क्रिएट कर लेते हैं. लेट अस से टेलीफोन एक्सपेंसेस. Let us say 6,000. So we have created certain ledgers, some few ledgers, and we have created 3 vouchers also. Now, what is auditing? All of us know what is auditing. Auditing is verification of financial records. We need to verify the financial records. We need to verify accounting data. And yesterday only I have told you that in case of accounting data is stored in 2 parts. One is called as master data and other is called as transaction data. तो master data और transaction data ये दोनों का recording हम दोनों का verification हम करने वाले. We can verify the master data as well as transaction data both. And both type of data is really important for us. तो दोनों तरह का जो डेटा है ये हमारे लिए बेहद जरूरी है ऑडिट करते समय. ऑडिट करते समय आपके साथ बहुत सारी चीजें हो सकती है. सबसे बड़ी समस्या ऑडिट करते समय क्या होती है? इसके पहले जब हम ट्रेडिशनल ऑडिट करते थे या करते हैं तो वहां पे क्या होता है? हमारी ऑडिट प्रोसेस में हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई करवा लेते हैं. हमारे आर्टिकल्स को, हमारे असिस्टेंट्स को हम कहते हैं कि जस्ट गो एंड वेरीफाई ऑल द ओपनिंग बैलेंसेस. सो वी हैव टू वेरीफाई द ओपनिंग बैलेंसेस. हम एक एक ओपनिंग बैलेंस हम वेरीफाई करते हैं. कहां से हम वेरीफाई करते हैं? पुराने साल की बैलेंस शीट लेते हैं, ट्रायल, और हम टैली में जाके एक एक बैलेंस को चेक करते हैं. इफ इट इज करेक्ट वी मार्क इट एज करेक्टेड, चेक्ड, एंड वी फॉरगेट अबाउट इट. लेकिन यही काम अगर आप टैली के ऑडिट फीचर के साथ करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो सकती है. अब बहुत सारी चीजें आसान कैसे हो सकती है ये भी मैं आपको दिखाता हूं. उसके पहले हम 2 लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं. एक है ये श्री मेडिकल्स अंडर सन्ड्री डेटर्स. ये श्री मेडिकल्स नाम से मैंने एक बना दिया है सन्ड्री डेटर्स के अंडर, और इसका बैलेंस जो है यहां पे मैं ले रहा हूं 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपीज डेबिट श्री मेडिकल्स. तो ये श्री मेडिकल नाम का एक लेजर है
और दूसरा एक SHREE श्री मेडिकल्स, मेरे पास दूसरा और एक्चुअल में एक लेजर है, श्री मेडिकल स्टोर्स करते थे इसको, SHREE और SHRI, ये सन्ड्री डेटर, इसका डेबिट बैलेंस मेरे पास है 10,000 रुपए डेबिट बैलेंस, 1,10,000 रुपए का डिफरेंस मेरी बैलेंस शीट में आ गया, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। क्रेडिटर 2, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ₹1,10,000 क्रेडिट। Now there is no difference in balance sheet. We were talking about checking of opening balances. Now let us assume that we have checked all the balances. अब टैली में से आपको balances चेक करना है तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये यूजर आईडी जो है ये है हमारा सचिन का यूजर आईडी। सचिन के यूजर आईडी में यहाँ पे एक ऑप्शन आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है। वो कौन सा ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो आना चाहिए और नहीं आ रहा है। आई एम गोइंग टू डिस्प्ले, then statement of accounts, and there must be one menu here that is called as tally audit, but tally audit menu is absent here, it is not visible here, it is not available. Why? Because tally audit menu will be available to those users only to whom it is allotted specifically. ये by default off रहने वाला है मेनू, ये सबको मिलने वाला नहीं है। You will get it only if it is provided to you specifically. So this menu is not available here. Now we have to go to admin ID. By default, admin ID is with admin. In case of admin ID, all the options are available by default. So I am going to this change user option. In case of change user, I am changing the user as A and A. Now this is admin ID. Now I am going to display more reports. Inside display more reports, statement of accounts, and now you are able to view the tally audit menu. This menu is available here. I am opening this menu. Inside this menu, there are options. There are certain options. First option is voucher type. Second option is masters, and third option is users. Let us go to masters. Masters में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है 13. We have created 13 masters. I am going back to gateway of tally once again, and I am repeating this process once again. What I have done, I am going to display more reports. Inside display more reports, I am going to statement of accounts, and inside statement of accounts, I am getting a menu called as tally audit. This menu is open now. यहाँ पे मैंने मेनू को ओपन किया और यहाँ पे मैं मास्टर्स के अंदर जा रहा हूँ। ये मास्टर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे के सारे मास्टर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑल मास्टर्स आर अवेलेबल हियर। अब इसका क्या करना, यहां से चेकिंग करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूं, बिकॉज वी विल बी मोर कंफर्टेबल विथ grouped trial balance or balance sheet like view, because we will be verifying all the ledger balances as per our previous year balance sheet. तो आपके पास पिछले साल की बैलेंस शीट है तो आप ग्रुप वाइज सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस चेक कर सकते हैं आप। तो पिछले साल की बैलेंस शीट आपने ले लिया है और पिछले साल की बैलेंस शीट लेने के बाद आपको बैलेंसेस चेक करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में हम करेंगे अल्टर F1 फॉर गेटिंग डिटेल ट्रायल बैलेंस, देन वी विल प्रेस F12 और F12 के बाद शो ओपनिंग बैलेंसेस यस, शो क्लोजिंग बैलेंसेस नो। एंड बाद आपको एक काम करना है, उसके बाद आपको काम क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो आपको काम करना है वो है ये कि यहाँ पे आएंगे आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यू विल कम टू दिस पॉइंट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद टैली ऑडिट, उसके बाद मास्टर्स, और मास्टर्स में आने के बाद हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हम एक एक लेजर को एक्सेप्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ टिक ऑन बैलेंस शीट और बैलेंस शीट प्रिंट आउट और ट्रायल बैलेंस प्रिंट आउट। टैली में से आप ट्रायल बैलेंस का प्रिंट आउट लेके उसके ऊपर भी टिक कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास एक चॉइस है। हम यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे जैसे एक लेजर को मैंने सिलेक्ट किया स्पेस बार दबा के, एक्सेप्ट 1, ये एक्सेप्ट हो गया।
कैश को मैंने सिलेक्ट किया, एक्सेप्ट वन, ये भी एक्सेप्ट हो गया। एक एक लेजर यहाँ से गायब हो रहा है, गायब हो रहा है मतलब यहाँ से हट रहा है, इट इज removed from this particular list. Why? Because this is a list of unaudited ledgers. This is a list of unaudited ledgers. स्पेस बार, एक्सेप्ट वन, या फिर मैं एक स्पेस बार, दो स्पेस बार कर सकता हूं, और एक्सेप्ट सिलेक्टेड ये भी मैं कर सकता हूं, या फिर तीसरा ऑप्शन मेरे पास है कि यहाँ पे मैं एक्सेप्ट ऑल भी कर सकता हूं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल मैंने कर दिया अभी। तो एक्सेप्ट ऑल करने के बाद ये पूरा का पूरा रिपोर्ट क्लीन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है। नाउ यू कैन चेक इन दिस मास्टर्स मेनू, देयर इज नथिंग। इन दिस मास्टर मेनू देयर इज नथिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं अभी। तो अब ये जो ऑडिट किया है ये किसने किया है? ये किया है एडमिन ने। मैं आपको ये बात बहुत ही विनम्रता के साथ बताना चाहूंगा कि हम जब ऑडिट करते हैं तो ऑडिट करते समय ओपनिंग बैलेंस का वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं, और ओपनिंग बैलेंसेस अगर हमने एक बार वेरीफाई कर लिए तो 99.99% केस में हम उसे फिर से ओपन करके नहीं देखते हैं, अनलेस एंड अनटिल देयर इज डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस। अगर आपकी बैलेंस शीट में, टैली की बैलेंस शीट में डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आ गया, तब ही आप उसे फिर से ओपन करके देखेंगे, फिर से वेरीफाई करेंगे। लेकिन अगर डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस नहीं आया तो आप उसे बिल्कुल ओपन करके नहीं देखने वाले हैं। अब आपके यहाँ पे, मैं यहाँ पे कंपनी में जा रहा हूं और यहाँ पे चेंज यूजर करता हूं। मैं चेंज यूजर करने के बाद यहाँ पे मैं यूजर नेम, फॉर एग्जांपल एक अभय नाम का यूजर था यहाँ पे मेरे पास, अभय पासवर्ड ब्लैंक था। नाउ दिस इज अभय, नाउ अभय हैज लॉग्ड इन। अब ये जो अभय नाम का अकाउंटेंट है हमारे पास में, हमारा ही व्यक्ति है, इसका कस्टमर के साथ सेटिंग है। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया मैं आपको बता देता हूं। अल्टर, लेजर, और ये श्री मेडिकल जो है, श्री मेडिकल्स, ये श्री मेडिकल के साथ में इसका सेटिंग है, बहुत बढ़िया सेटिंग है, बहुत गहरा याराना है। तो इसने क्या किया कि श्री मेडिकल का ओपनिंग बैलेंस जो था वो 1,00,000 रुपए के बदले 10,000 रुपए कर दिया। जैसे ही इसने ओपनिंग बैलेंस चेंज किया तो वहां पे डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया है। तो नाउ दिस हैज बीन चेंज। यहाँ पे देख सकते हैं आप ओपनिंग बैलेंसेस, एक ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 रुपए का, इसने 10,000 रुपए कर दिया, तो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस शीट आ गया यहाँ पे। अब डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस अगर आ गया तो ऑडिटर का ध्यान इसके ऊपर जाएगा। ये अभय को पता है, इतनी समझ अभय में है, तो अभय को ये भी पता है कि अगर गड़बड़ करना है तो गड़बड़ कहाँ से करना और कैसे करना, ये भी उसको पता है। तो उसने क्या किया, उसने फिर से एक काम किया, यहाँ पे अल्टर में गया, अल्टर में जाने के बाद लेजर, और लेजर में ये जो श्री SHREE वाला श्री है, श्री मेडिकल स्टोर, इसका ओपनिंग बैलेंस जो 10,000 रुपए था वो 10,000 रुपए को बढ़ा के इसने कर दिया 1,00,000 रुपए। मतलब एक जगह पे बैलेंस कम कर दिया, एक जगह पे उतना ही बैलेंस बढ़ा दिया। नाउ देयर इज नो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंसेस आर टैलीड एंड डेटर्स आर आल्सो टैलीड। यू कैन चेक ऑन दिस बैलेंस शीट। अगर डेटर की टोटल जो है वो सही है और डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है तो कोई भी ऑडिटर फिर से ये सारा चेकिंग नहीं करेगा। इंटरनली देयर माइट बी सम मिस्टेक, इंटरनली देयर माइट बी सम एरर्स, फ्रॉड्स, आउटर साइड कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये पॉइंट आपको पता कैसे चलेगा? आपको कभी भी ये पॉइंट पता नहीं चल सकता है, क्योंकि आप फिर से चेक करने ही नहीं वाले हैं। आप मतलब मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी फिर से चेक नहीं करूंगा, हमारे पास इतना समय ही नहीं है ये सारी चीजों का फिर से चेकिंग करने के लिए। और अगर आपकी डेटा लिस्ट 5,000 लोगों की है तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता फिर से 5,000 लोगों की लिस्ट चेक करना। 5,000 क्या 500 की डेटा की लिस्ट होगी तो भी हम चेक नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम टैली का ऑडिट फीचर यूज कर रहे हैं तो ये काम बड़े आसानी से हो सकता है। नाउ दिस इज अभय's ID. Now let us go to display more reports. Let us go to statement of accounts. Abhay is not getting any menu for tally audit because this menu has not been allotted to Abhay. Now what we will do, we will go to company. We will go to company, we will change user, and after changing the user, we will select the username as A for admin.
Admin has got all the menus, all the facilities. Now admin is opening the menu for audit, statement of accounts, tally audit. This menu is available to admin, and inside this menu I am selecting masters. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है. इसके पहले, थोड़ी देर के पहले, ये जो मेनू था ये एम्प्टी था, इसमें कुछ भी नहीं था. नाउ यहाँ पे आप देखिए कि दो अल्टर्ड में आ गया है, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पे देखिए कौन से लेजर को अल्टर किया गया है. तो श्री मेडिकल्स और श्री मेडिकल स्टोर्स, इन दोनों में अल्टरेशन हुआ है, और यहाँ पे नाम लिख के आ रहा है अल्टर्ड बाय अभय ऑन 17 December 21. अगेन इट इज अल्टर्ड बाय अभय ऑन 17 December 21. अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑडिट का फीचर ऑन करने के लिए आपको सिक्योरिटी कंट्रोल ऑन करना क्यों जरूरी है. व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेट सिक्योरिटी कंट्रोल ऑन बिफोर यू स्टार्ट टैली ऑडिट फीचर ऑन. तो यहाँ पे ये नाम भी लिख के आ रहा है कि किसने अल्टर किया और कौन सी तारीख को अल्टर किया. अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं. यहाँ पे मैं आपके सवाल का इंतजार कर रहा हूं. एक आपके दिल में एक आधा सवाल यहाँ पे आना चाहिए, तो आप मुझे पूछ सकते हैं वो सवाल, जो कि एक बहुत कॉमन सवाल होता है. I am waiting for this question, or if at all you are having any type of questions up to this point, you can ask. डेटर की जो लिस्ट थी उसमें चेंजेस हो गए हैं, और चेंजेस कौन से हुए हैं ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. श्री मेडिकल्स और श्री मेडिकल स्टोर्स, ये दोनों के बैलेंसेस चेंज हो गए हैं. Now what you can do, you can open the balance sheet, the printed balance sheet, signed balance sheet again, and you can check only these two ledgers. और ये दो लेजर आपने एक बार चेक करके ठीक कर दिए तो आपका काम आसान हो गया. ये तो यहाँ पे फ्रॉड का अटेम्प्ट था, लेकिन मैं आपको बता दूं कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्रॉड करने का कोई इंटेंशन नहीं है, गलती है, जेन्युइन मिस्टेक है. सो देयर माइट बी सम जेन्युइन मिस्टेक, एंड ड्यू टू सर्टेन जेन्युइन मिस्टेक, due to some genuine mistake, there may be a difference in opening balance, and this difference in opening balance may appear in the last week of due date month. जिसमें जिस भी मंथ में ड्यू डेट है, let us assume that this is 31st December, तो 28 दिसंबर 29 दिसंबर को अगर ऐसी स्थिति आ गई कि आपके ओपनिंग बैलेंसेस में डिफरेंस आ गया और इसके बाद आपको चेकिंग करना है, तो वैसे ही हमारी हालत खराब हो जाएगी पूरा का पूरा ओपनिंग बैलेंस चेक करने में कि अभी कितना समय लगेगा, कि ये सारे बैलेंसेस चेक करके ढूंढने में कि अभी हमें ये एक्चुअली गलती है कहां पे. नाउ वी कैन चेक फ्रॉम द प्रीवियस बैलेंस शीट एंड वी कैन सेट द फिगर करेक्ट. अब ये जो फिगर है हमारा, यहाँ पे हम ओपन करेंगे. मैं यहीं से एंटर करके इसे ओपन कर रहा हूँ, और ओपन करने के बाद मुझे बैलेंस शीट देखने के बाद पता चल गया कि ये जो मेरा बैलेंस है ये मेरा 1 लाख रुपए है. तो यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए टाइप कर दिया और एंटर कर दिया. एंटर 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 and accept. As soon as I accept this, automatically ledger opening balance is corrected as well as the ledger is removed from this audit list. मतलब ये लेजर क्रिएट, मतलब अल्टर भी हो गया, उसका बैलेंस भी करेक्ट हो गया, और यहां से ये एक्सेप्ट करके बाहर भी निकल गया. अब एक और खास बात आपको मैं बताता हूं. यहाँ पे देखिए, ये जो 1 लाख रुपए बैलेंस है यहाँ पे, ये 1 लाख रुपए को मैं अगर मॉडिफाई करके यहाँ पे इसको मैं 1,50,000 करता हूँ, इफ आई मेक इट 1,50,000, लेट अस सी व्हाट हैपेंस. यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक्सेप्ट. अब एक्सेप्ट करने के बाद ये यहाँ से हट नहीं रहा है. ये क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि इसका ओरिजिनल बैलेंस क्या था ये टैली को पता है. इसका ओरिजिनल बैलेंस 10,000 रुपए था, ये टैली की मेमोरी में कहीं ना कहीं है, इसलिए वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. पहले वाला जो लेजर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से एक्सेप्ट होके निकल गया. वो एक्सेप्ट होके क्यों निकल गया? उसका कारण यह है कि जो ओरिजिनल अमाउंट था, सही अमाउंट था, वही अमाउंट हमने यहाँ पे सेट कर दिया था. नाउ लेट अस ओपन दिस वंस अगेन, और ओपन करने के बाद में यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, और इसका जो ओरिजिनल अमाउंट था वो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ. आई एम टाइपिंग द ओरिजिनल अमाउंट. एंटर एंटर एंटर, एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस. Automatically this particular entry, the ledger, is removed from the list. Why it is removed from the list? Just because it has now corrected and the original amount is set. तो यहाँ पे टैली की मेमोरी में ओरिजिनल अमाउंट कहीं ना कहीं है, और वो ओरिजिनल अमाउंट जो है वो ओरिजिनल अमाउंट टैली को पता है, लेकिन टैली वहां पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है. अब हम एक और काम करते हैं. लेट अस गो टू दिस कंपनी,
and let us change the user once again. Let us say Sachin, password was empty, and let us say that Sachin is creating a ledger. गलती से कभी कभी लेजर क्रिएट हो जाते हैं और लेजर क्रिएट होने के बाद में हमें डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस पता ही नहीं चलता कहां से आ रहा है क्या आ रहा। तो ठीक है, चलो एक हम लेजर बनाते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, ये नाम से मैंने एक लेजर बना दिया। ये लेजर का ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं, ये लेजर की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 15,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस किसी ने गलती से डाल दिया और डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे आ चुका है। और डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आने के बाद ये लेजर किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा और लोग परेशान हो गए। आखिरी समय है ऑडिट का, तो यहाँ पे डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे बैलेंस शीट में दिख रहा, तो ये क्यों आ रहा किसी के समझ में नहीं आ रहा। अब हम फिर से वही काम करेंगे। लेट अस गो टू दिस कंपनी, इनसाइड कंपनी लेट अस गो टू चेंज यूजर। यहाँ पे हम करेंगे ए एंटर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, पासवर्ड इज सेट एज ए। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद टैली ऑडिट, और टैली ऑडिट में हम जा रहे हैं मास्टर्स में। यू कैन चेक हियर, एंटर्ड में एक आ रहा है फिर से, हमारे चेकिंग करने के बाद अगर अल्टरेशन हो रहा है तो भी यहाँ पे वो अपीयर हो जाएगा, और अगर नया लेजर बन रहा है तो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये आईसीआईसीआई बैंक का लेजर किसी ने तो भी गलती से क्रिएट किया था, इसमें ओपनिंग बैलेंस की कोई जरूरत ही नहीं थी, तो ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ से हटा देंगे। वी विल रिमूव द ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम हियर, एंटर। और अब हम इसे करेंगे एक्सेप्ट वन, तो वी विल एक्सेप्ट दिस लेजर। यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर दिया तो ये निकल गया यहाँ से। नाउ लेट अस गो टू मास्टर्स, देयर इज नथिंग इन दिस रिपोर्ट मेनू। एनी क्वेश्चंस अप टू दिस पॉइंट? चलो कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे थोड़ा सा आपका फीडबैक जानना चाहूंगा इस फीचर के बारे में। डू यू फाइंड दिस फीचर यूजफुल? कैन इट बी यूज्ड इन योर ऑफिस एंड कैन इट बी यूज्ड इमीडिएटली फ्रॉम टुमारो? आप कल से ही इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं क्या? आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। आइदर से यस, नो, डोंट नो, मे बी, probably, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। Do you find this feature useful? Can you use this feature in your office immediately from tomorrow? Yes, now I'm getting the feedback. हाँ, अभी से बोल दिया yes can be used. अभी से यूज कर रहे हैं मतलब ऑफिस में ही बैठे ऐसा लग रहा मुझे, और काम चलो है। बेटर एट क्लाइंट प्लेस, यस सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मैं आपको ऐसी चीजें सिखाऊं जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सके। कभी कभी कुछ कुछ फीचर टैली के ऐसे होते हैं जिसको आप इंप्लीमेंट करने में हो सकता है कि बहुत आपको पसीना आ जाए, आप सोचने लगे अरे यार ये तो बहुत बड़ा काम है, अब ये काम करते हैं, इस बार का ऑडिट हो जाने तो अगले बार के ऑडिट के लिए यूज करेंगे, और वो अगला बार कभी आता ही नहीं, मुझे पता है। अगले बार में फिर से आप सोचते हैं अरे यार ये ठीक है, इस बार जाने तो अगले बार से फिर से करेंगे। आज नगद कल उधार वाला काम हो जाता है। तो ऐसे कुछ फीचर्स है टैली में जो कि आप बड़े आसानी से तुरंत ताबड़तोड़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आज आता ताबड़तोड़। So just ensure that whether this feature is activated, whether this feature is set to on. Now this is one part of the feature. The second part of the feature is transactions. Now how we can verify the transactions? अब ये transactions को हम verify कर सकते हैं। आप के यहाँ पे अगर किसी client का internal audit है तो internal audit में तो ये feature जबरदस्त काम में आने वाला है, जबरदस्त। और ये फीचर की वजह से आपका इंटरनल ऑडिट भी बहुत आसान हो सकता है। यू कैन आस्क योर स्टाफ हाउ मेनी वाउचर्स यू हैव वेरीफाइड टुडे एंड देयर कैन बी एग्जैक्ट काउंट ऑफ वाउचर, अदरवाइज ये आपको काउंट मिल ही नहीं सकता है। कौन से वाउचर थे, कितने वाउचर को आज एक्सेप्ट किया, आप अपने स्टाफ से इसका पूरा हिसाब ले सकते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब ये यहाँ पे ये फीचर के साथ में मैं आपको और चीजें कुछ समझाता हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हम जाते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में वी विल गो टू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स and inside statement of accounts we will go to tally audit and we have verified, we have checked the masters menu. Now you can go to this voucher types menu. यहाँ पे voucher type में हम गए तो यहाँ पे एक ही voucher type हमें दिख रहा है।
तो चलिए 2-4 वाउचर टाइप की हम एंट्रीज कर लेते हैं ताकि हमें डेटा थोड़ा सा मिल जाए। तो यहाँ पे डेटा मेरे पास नहीं है, तो मैं डेटा 2-4 वाउचर का डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। आई एम गोइंग टू दिस कंपनी, आई एम गोइंग टू चेंज यूजर, एंड इनसाइड चेंज यूजर्स आई एम सिलेक्टिंग द यूजर एज अभय और लेट अस से जितेन। नाउ लेट अस क्रिएट वाउचर्स। तो यहाँ पे हम कुछ वाउचर्स क्रिएट करेंगे। रिसिट का मैं वाउचर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, अब ये था हमारे पास, कैश ले लिया यहाँ पे। श्री मेडिकल स्टोर्स, इसका बैलेंस 10,000 रुपए है, इसमें से 8,000 रुपए मिल गए हैं। एंटर एंटर एक्सेप्ट। उसके बाद एक और कैश का बैलेंस लेता हूं मैं, SHREE श्री मेडिकल्स, इसका बैलेंस, हाँ अब एक मिनट, SHR यहाँ पे लेता हूँ 40,000 रुपए, 40,000। तो 2 रिसिट के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए मैंने। एक सेल्स का भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देता हूं मैं। लेट अस से कैश सेल्स, sales ledger is not yet created. Let us create a sales ledger. It will be without GST. यहाँ पे कोई GST का अकाउंटिंग हम करेंगे नहीं फिलहाल। एज वाउचर लिया मैंने, डेबिट में सेल्स लिया, लेट अस से 30,000 रुपीज। एक सेल्स का रिकॉर्ड कर लिया, एक परचेस भी कर लेते। चलिए F9 परचेस, देन चेंज मोड एज वाउचर। हाँ, लेट अस से 25,000, क्रिएट परचेस अंडर purchase accounts and accept the screen. So we have created certain transactions now. अब हमारे पास में जो ट्रांजैक्शंस है उसका हमें ऑडिट करना है। तो ऑडिट करने के लिए यहाँ पे हम जाते हैं चेंज यूजर में। वी विल बी यूजिंग एडमिन आईडी फॉर ऑडिटिंग। हमने वाउचर एंट्री के लिए अलग अलग ट्रांजैक्शंस, अलग अलग यूजर्स यूज किए। लेट अस गो टू दिस display more reports, and inside display more reports let us go to statement of accounts, let us go to tally audit, and inside tally audit let us go to voucher types. Now there are certain voucher types: payment, purchase, receipt, sales. There might be more number of voucher types depending on the transactions, depending on the company. तो यहाँ पे ये परचेस के ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं मुझे, पेमेंट के ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पेमेंट के 3 ट्रांजैक्शन है ये अप्रैल महीने के दिख रहे हैं मुझे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंट का ट्रांजैक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे यूजर्स में जाता हूँ, यूजर्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर्स में देयर आर 3 यूजर्स। One is Sachin, one is A means admin, Sachin and Jiten. These are the 3 users. इन्होंने कितने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। Either we can go user wise or we can go voucher type wise. Let us go to voucher types. Now let us go to this payment. अब ये हम पेमेंट में चले गए और यहाँ पे पेमेंट में जाने के बाद ये एक ट्रांजैक्शन मुझे दिख रहा है। इसको मैं ओपन करके चेक कर सकता हूँ कि सब कुछ सही है, अमाउंट सही है, नरेशन सही है, पार्टी नेम, डेट, लेजर सब कुछ सही है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाउचर को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे स्पेस बार दबा के सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, एक्सेप्ट 1। आई एम ऑडिटिंग दिस वाउचर। ये वाउचर ये भी चेक कर लिया मैंने, एक्सेप्ट 1। ये भी चेक कर लिया, ये भी एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पे इतने मेरे वाउचर्स एक्सेप्ट हो गए हैं। आप अपने स्टाफ को अगर बोल रहे होंगे कि आप यहाँ पे ऑडिट करने के लिए रोज जाइए, तो रोज जाते समय आप उनसे ये हिसाब ले सकते हैं कि आज दिन भर में कितने वाउचर्स चेक किए, और ये जो वाउचर्स चेक उन्होंने किया है उसका काउंट ऑटोमेटिकली उन्हें मिल जाएगा, वो हिसाब रखने की जरूरत नहीं है उन्हें। So this is again one of the advantage of this feature. Now I am opening this purchase transaction. ये भी परचेस चेक कर लिया मैंने, एक्सेप्ट 1, दिस इज ओके। तो इतना करके मेरा काम खत्म हो गया और मैं घर पे चला गया। एज एन ऑडिटर आई वेंट होम। और मेरे जाने के बाद में हमारे ऑफिस में अलग अलग यूजर्स काम करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब ये अभय नाम का जो यूजर है
ये थोड़ा सा गड़बड़ आदमी है, इसने इसके पहले भी एक बार गड़बड़ की थी और इसकी गड़बड़ करने की आदत जो है वो कुछ जाती नहीं है। तो एक बार गड़बड़ इसने कर दिया था, वो हमने ठीक कर लिया, हमें समझ में आ गया, एक बार उसको डांट फटकार के हमने छोड़ दिया। अब लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसने देखा कि मेरे पास के जो ट्रांजैक्शन है वो कैश के बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, और इसको अगर कैश में गड़बड़ करनी है तो यहाँ पे इसने ये टेलीफोन एक्सपेंसेस का जो एक ट्रांजैक्शन था, ये ट्रांजैक्शन को इसने ओपन किया और यहाँ पे 6,000 के बदले कर दिया 12,000 रुपए, और कैश में से 6,000 रुपए निकाल लिए, घर पे चला गया। ज्यादा बड़ा फ्रॉड नहीं किया, थोड़ा सा छोटा सा फ्रॉड किया, क्योंकि छोटे छोटे फ्रॉड पकड़े नहीं जाते, किसी का ध्यान भी नहीं उसके ऊपर जाता नहीं है। बड़े फ्रॉड करेंगे तो पकड़ने के चांसेस रहते, तो छोटे छोटे कार्यक्रम चलने दो, ऐसी इसकी पॉलिसी थी। तो एक ही वाउचर इसने मॉडिफाई किया था। अब हमारा जो ऑडिटर है, हमारा जो आर्टिकल असिस्टेंट है, वो वहां पे फिर से पहुंच गया, और फिर से पहुंचने के बाद में उसने अपने आईडी से लॉग इन किया। यहाँ पे एडमिन आईडी ए एंटर। नाउ अब हम जाके देखते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में टैली ऑडिट, और यहाँ पे वाउचर टाइप्स। वाउचर टाइप में आप देख सकते हैं कि पेमेंट का ऑडिट हमने कल कंप्लीट किया था, पेमेंट में कुछ भी हमारा बाकी नहीं था। तो पेमेंट में अभी यहाँ पे एक भी ट्रांजैक्शन एंटर्ड में नहीं दिख रहा है, एंड देयर वी आर गेटिंग वन वाउचर, वन ट्रांजैक्शन इन अल्टर्ड मेनू। यहाँ पे अल्टर्ड में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये एक ट्रांजैक्शन अप्रैल महीने में दिख रहा है, इसे हम ओपन करते हैं। नाउ यू कैन चेक, entered by Sachin and altered by Abhay on 17th December 21. This is the only voucher where alteration has been made. Now we can call this person, altered by person, that is Abhay, and we can ask for clarification from him why you have altered this transaction. Now we can call for the original voucher. We can visit shops at Raja Plaza. for the supporting document also. We can check the payment entry also. We can check each and everything. We can check each and everything and get ourselves assured that whether this alteration is genuine or ingenuine. ये alteration सही है कि गलत है, ये हम जान सकते हैं, चेक कर सकते हैं। Now after opening this transaction, if we found that there is mistake in amount, we can correct the mistake and we can set it to original number, the original figure. यहाँ पे भी देखिए क्या हो गया, यहाँ पे भी टैली की मेमोरी में ये फिगर है जो ओरिजिनल फिगर था, ये फिगर टैली की मेमोरी में है जो फिगर ओरिजिनल फिगर था। जैसे ही हमने इसको 6,000 करके एक्सेप्ट किया तो ऑटोमेटिकली ये ऑडिट रिपोर्ट में से भी एक्सेप्ट होके बाहर निकल के आ गया। लेकिन आप जो सवाल मुझे पूछना चाहते हैं और जो आपने अभी तक पूछा नहीं है, उसका मैं आपको जवाब यहाँ पे पहले ही दे देता हूं कि यहाँ पे अगर किसी ने एक आधा वाउचर चेंज किया तो उसका ओरिजिनल अमाउंट क्या था, ये टैली कहीं पे कोई रिपोर्ट में डिस्प्ले नहीं करता है। Despite of having this information in the database, Tally doesn't display this information. So if there is any alteration, to a voucher, what was the figure before alteration? This is not displayed by Tally at all. अब आपके दिल में जो सवाल है वो सवालों के जवाब मैं बिना पूछे ही आपको फिर से दे रहा हूं। अब सवाल भी मैं ही पूछूंगा और जवाब भी मैं ही दूंगा। पहला सवाल कि हमें अगर ये पता चलेगा क्या कहीं से कि टैली में ये अल्ट्रेशन करने के पहले ये 6,000 रुपए को 12,000 किया गया है, तो व्हाट वाज द अमाउंट बिफोर अल्ट्रेशन? दिस इज नॉट अवेलेबल इन टैली बाय डिफॉल्ट। ये टैली में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है। यू नीड टू कस्टमाइज टैली फॉर दैट पर्पस। इट इज स्टोर्ड इन टैली डेटाबेस बट इट इज नॉट डिस्प्लेड इन टैली। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर एक ही वाउचर को 2-3 बार अल्ट्रेशन हो रहा है, पहले 6,000 था, फिर किसी ने 12,000 किया, फिर 18,000 किया, फिर तीसरे यूजर ने उसको 36,000 कर दिया, फिर 24,000 कर दिया, ऐसे एक ही वाउचर को मल्टीपल लोग अल्टर कर रहे हैं, तो अल्टर्ड बाय में कितनी हिस्ट्री आएगी?
ये सवाल आपके दिमाग में है क्या? होगा ही डेफिनेटली, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड वी ऑलवेज थिंक इन दिस वे ओनली। हम हमेशा उल्टा सोचते, उल्टा मतलब कि हम ऑडिटर के दिमाग से सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, ये सारी चीजों को हम सोचते हैं। तो ये भी पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो अभी हम ये भी पॉइंट देख लेंगे। तो ये 12,000 रुपए का जो वाउचर था, इसी के साथ हम खेल खेलेंगे। तो ये 12,000 का वाउचर, इसी के साथ हम खेल खेलते हैं थोड़ा सा। आई एम गोइंग टू दिस कंपनी एंड इनसाइड कंपनी आई एम गोइंग टू चेंज यूजर। हाँ, अब यहाँ पे लेते हैं फिर से जितेन। हाँ, अब ये जो डिस्प्ले डे बुक में जाते हैं हम, ये 6,000 रुपए का वाउचर था। 6,000 रुपए के वाउचर को अभी हम करते हैं 7,000 रुपए। Deliberately we are making it 7,000. So this change has been made by a user called as Jiten. Now let us go to company once again and let us change user. I am changing the user. Now let us say Sachin. Display day book. This 7,000 voucher is now made 7,500 by Sachin. तो पहले 6,000 था, फिर 6,000 का 7,000 किया जितेन ने, और सचिन ने उसका 7,500 रुपए किया। अब हमें हिस्ट्री में क्या मिलने वाला है इसमें? लेट अस गो टू कंपनी वंस अगेन, लेट अस चेंज यूजर एंड यहाँ पे हम लेते हैं ए एंटर एंड लेट अस गो टू दिस डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, टैली ऑडिट, एंड इनसाइड टैली ऑडिट लेट अस गो टू वाउचर टाइप्स। We are getting the same voucher once again in alteration list. तो ये अल्ट्रेशन लिस्ट में वही वाउचर हमारा आ रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर्ड बाय ए एंड अल्टर्ड बाय सचिन। सचिन के अल्ट्रेशन करने के पहले जितेन ने इसे अल्टर किया था, लेकिन जितेन का अल्ट्रेशन में नाम कहीं नहीं आ रहा है। वाई? उसका कारण बिल्कुल आसान है, सिंपल है कि जो भी व्यक्ति आखिरी में इसको अल्टर करेगा उसी का नाम आने वाला है। अगर 10 लोगों ने अल्टरेशन किया होगा तो 10वें आदमी का नाम, 10वें यूजर का नाम यहाँ पे आएगा। देयर विल नॉट बी अ लिस्ट ऑफ ऑल द 10 यूजर्स, प्रीवियस 9 यूजर्स विल बी इरेज्ड। उनका हिस्ट्री, जो उनकी हिस्ट्री यहाँ से इरेज हो जाएगी, और यहाँ पे सिर्फ आखिरी व्यक्ति का नाम रहेगा। सो इज इट क्लियर? Is it clear up to this point? Now let us go to users menu. Let us go to users menu. Yes, Anurag ji, thank you. Let us go to users menu. यहाँ पे हम users menu में जा रहे हैं, और users menu में यहाँ पे हमें दिख रहे हैं लेजर। तो ये जो 2 लेजर्स है, ये यूजर ने क्रिएटेड लेजर है। These are the new ledgers created by users. तो ये ए नाम के यूजर ने ये 2 लेजर क्रिएट किए थे। इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट 1 कर दिया मैंने, फिर से इसको भी लिया, इसको भी एक्सेप्ट 1 कर दिया। अब ये एक्सेप्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी मिल रहे हैं। ट्रांजैक्शन तो यूजर वाइज ट्रांजैक्शन भी मुझे मिल सकते हैं कि कौन से यूजर ने कितने वाउचर अल्टर किए, कौन से यूजर ने कितने वाउचर क्रिएट किए। अब इसका एक और अल्टरनेटिव यूज है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बहुत बार हमारे खुद के ऑफिस में कुछ अकाउंटिंग का काम अगर हम कर रहे हैं, या फिर क्लाइंट के प्लेस में जहां पे अकाउंटिंग का काम हो रहा है, वहां पे क्लाइंट का अकाउंटेंट कंप्लेंट करता है कि सर यहाँ पे बहुत ज्यादा काम है, मेरी सैलरी बढ़ाओ, बहुत काम है। अब वहां पे हम देख सकते हैं कि रोज कितने वाउचर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो हर यूजर कितने वाउचर क्रिएट कर रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको बहुत आसानी से यहाँ पे मिल सकती है। हाउ मेनी वाउचर्स आर क्रिएटेड बाय अ पर्टिकुलर यूजर। हो सकता है एक आधा पर्टिकुलर अकाउंटेंट दिन के 10 वाउचर क्रिएट कर रहा है और बोल रहा है कि सर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम है। अरे तो 10 वाउचर मतलब बहुत ज्यादा काम होता है क्या? ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं, और वो अकाउंटेंट भी अपने आप से ये सवाल पूछ सकता है कि बहुत ज्यादा काम मतलब अकाउंटिंग छोड़ के बहुत ज्यादा काम है, ऐसा है क्या? सो द सेम थिंग कैन बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ वेज।
So friends, this was something about Tally audit feature, the exclusively Tally audit feature. This feature is available in Tally ERP9 as well as Tally Prime both. Some menus are different, but you can use the Tally audit feature in both the versions, that is Tally Prime and Tally ERP9. Today I was allotted 1 hour, so 55 minutes are over. We started at 5:30. It is 6:25 now, and now I am keeping some time for questions and answers. You may ask me any questions regarding today's session as well as yesterday's session also. The second speaker is unfortunately not available due to certain personal issues, so we will be ending this session early, a little early. So friends, I am now available for answering your queries. You are most welcome to ask me any questions either relating to this particular today's session or yesterday's session. Saket sir, are you there? मुझे वो शोले पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा अभी, A.K. हंगल का डायलॉग। क्या है वो डायलॉग, कोई बता सकता है क्या? A.K. हंगल का फेमस डायलॉग है शोले में, लिख के भेजो तो चैट बॉक्स में। द फेमस डायलॉग बाय A.K. हंगल इन शोले। वो डायलॉग लिखने के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं, ऐसा लग रहा मुझे। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतनी खामोशी आ गया सर वहां पर लिख कर? इतनी खामोशी नहीं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ऐसा डायलॉग है वो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जितेंद्र सर पता ना, साकेत सर पता नहीं आज क्या हो रहा है, बहुत ही सन्नाटा है। नो एक्टिविटी फ्रॉम यूजर साइड। सर अभी हमने वो डाला ना, हमने भी डाला ना कि भैया वो कल क्रिकेट मैच है, IC 11 वर्सेस इनकम टैक्स 11। अच्छा, तो लोग शायद उसकी तैयारी में लग गए। वेबिनार करते करते ही तैयारी चल रही है, ऐसा लग रहा मुझे। सर सतीश आज का एक्चुअली सर इलेक्शन का माहौल भी है ना। यस यस यस। सतीश जी की क्वेरी हाँ चलिए। हाँ, चांदनी चौरसिया, चांदनी एंड रोशनी, ये दोनों मेरे ITT की बैच में थी। सर सतीश जी की क्वेरी, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई डुप्लीकेट एंट्री इन ऑडिट? हाँ चलिए चलिए, हाँ चलिए, वो क्वेरी का जवाब देता हूँ, लेकिन अभी ये चांदनी का नाम देख के मुझे जो बात याद आ गई वो अभी आपको बता देता हूँ, सभी को बता देता हूँ। चांदनी और रोशनी ये दोनों शायद दोनों कल भी थी, आज है कि नहीं पता नहीं। आज चांदनी का नाम तो दिख रहा मुझे, रोशनी का नाम नहीं दिख रहा। तो ये दोनों ITT की बैच में थी, और तब ये इनकी खासियत थी, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, और ये दोनों जुड़वा बहनें ITT 25 दिन का ITT था तब, तो 25 दिन रोज एक जैसा ड्रेस पहन के आती थी वो। सिर्फ पैटर्न अलग था उनका ड्रेस का, कलर मतलब पैटर्न सेम था, कलर अलग रहता था, लेकिन बिल्कुल सेम ड्रेस पहन के आती थी, और बिल्कुल रोज मतलब 25 के 25 पूरे दिन। तो मैं तो मानता हूँ, मतलब क्या जबरदस्त इनका ट्यूनिंग है आपस में। ये ऐसा आप एक दूसरे को बोलते नहीं, नहीं आज मेरा ड्रेस पहनने का मूड नहीं, ऐसा इन्होंने कभी बोला नहीं एक दूसरे को। बहुत बढ़िया। चलिए तो अभी एक क्वेरी के ऊपर आते हैं हम। हाँ, और दोनों CA बन गई, ये खास बात है और भी। हाँ चलो, क्वेरी, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई डुप्लीकेट एंट्री इन ऑडिट टूल? डुप्लीकेट एंट्री मतलब आपका क्या कहना है कि एक ही एंट्री गलती से 2 बार हो गई, तो ऐसा अगर आपका कहना है तो देखिए, डुप्लीकेट एंट्री आइडेंटिफाई करने के लिए टैली में वैसे कोई टूल नहीं है। क्योंकि देखिए, रेंट, जैसे हम रेंट की बात करेंगे, रेंट अगर आपका 25,000 रुपए पर मंथ है तो हर बार 25,000 ही आएगा। Every month there will be a payment of rupees 25,000 as rent. So how Tally would know that this is a duplicate entry? So in Tally there is no such system. You have to use your own judgment to identify the duplicate entry. And if you are using audit feature in Tally, you are going to verify each and every voucher by putting an electronic tick in Tally. अगर आप Tally में electronic tick, जैसा मैंने आपको दिखाया यहाँ पे accept one या accept all, this is putting electronic tick in Tally. तो Tally में आप electronic tick अगर put करोगे तो जान आप देख के समझ के ही उसको रखने वाले हैं। तो 25,000 के 12 एंट्री है रेंट की, और गलती से 13वीं एंट्री हो गई है, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसका कोई वाउचर आपके पास नहीं होगा या फिर बैंक की पेमेंट की एंट्री नहीं होगी। तो ये आपको अपने जजमेंट से ही समझना पड़ेगा। हाउ टू फ्रीज ओपनिंग बैलेंसेस इन टैली प्राइम? स्वरूप भुसारी।
How to freeze opening balances in Tally Prime? For that purpose, you have to use security control, and in case of security control, you have to disallow access to accounts master alteration. तो accounts master alteration को आपको disallow करना पड़ेगा. अगर आप उसे disallow करते हैं तो कोई वहां पे जा ही नहीं सकता है. तो ये आपने बिल्कुल सजेशन सही दिया है. एक बार हमारा ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई हो गया तो ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई होने के बाद हमें अकाउंट्स को मतलब अकाउंट्स मास्टर डेटा को आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा. डिसअलाउ अल्टरेशन. यू कैन क्रिएट द डेटा बट यू शुड नॉट alter it, but to some extent this access is needed on a regular basis also. तो अगर आपके ऑफिस में 5 अकाउंटेंट है तो 5 में से एक को ही एक्सेस देना है, ताकि अगर गड़बड़ हो रही है तो एक ही आदमी गड़बड़ कर सकता है, ये हमारे ध्यान में आ जाएगा. पांचों को अकाउंट्स का अल्टरेशन का एक्सेस नहीं होना चाहिए. एंड देयर हैज टू बी सर्टेन कंट्रोल. इसके ऊपर कंट्रोल होना ही चाहिए. ये कंट्रोल है अगर तो आपका काम आसान होगा, गलतियां नहीं होगी. यस. एनीथिंग एल्स? Any more queries? आई फील सर सब लोग ना पर्सनल तौर पर ज्यादा है. मुझे लगता है कि सबको ऐसा लगेगा आप सामने बैठ जाओ और उनकी क्वेरी सॉल्व कर तो ज्यादा अच्छा है. मतलब एंड आई टेल यू फ्रेंड्स कि नहीं, सर का आज का भी जो है मॉर्निंग के अंदर में जो शेड्यूल था, मॉर्निंग के अंदर में भी बहुत डिफिकल्ट सिनेरियोस थे क्योंकि आज लाइट कहीं नहीं थी और फिर सर ने कहां से मैनेज करके सिर्फ सेशन के लिए फिर टाइम निकाला हुआ है. अभी हाँ. यस. So if there are no queries, then with the permission of sir, we'll wind up the session. Yes, sure. Are there any queries? Okay, fine, fair enough, fair enough. I feel it was a superb 2-day workshop on Tally, exactly Tally Prime on exploring audit, Tally for exploring the audit probabilities. I feel it has been an excellent learning lesson for all of you. And big thanks to Pankaj sir. Dheeraj must not have been able to make it today, but big thanks to him for consenting to the invitation. And then even the yesterday speaker and all the wonderful audience who is been present here in large numbers to really enjoy this interactive session, because this is the season of audit and this is where we are really looking forward to tips and tricks to make the audit function easy. I thank each one of you, more specifically Pankaj sir. आपका इतना पे में इतना सब कुछ करके आपने टाइम निकाल के किया हुआ है. Really big thanks on behalf of Nagpur branch, and I would request if it is possible for anybody to just clap for this spectacular faculty who is doing his part in spite of lot of pain. Thank you so much, sir, and I thank all the people, all the dignitaries who are present here. Thank you, one. Thank you all. As we conclude this session. Ravin, you can end the meeting for all. Yes, sir. Thank you, sir.